صفحہ نمبر 154، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان میں ایک یا زیادہ مماثلاتی انجیل کے مصنفین نے ایک دوسرے کی انجیل کو پڑھا ہو اور اس سے کچھ باتوں کو مستار لیا ہو اور ان کہانیوں پر بحث و تمہیز کی ہو جنہیں انہوں نے یسوع کے متعلق زبانی سنا تھا، یا ان چشمدید گواہوں جس سے انہوں نے گفتگو کی تھی یادداشتوں پر انحصار کیا ہو، جیسا کہ پہلی صدی کے چرچ فادرز کی تحریروں کے پڑھنے سے بتا سکتے ہیں، جیسے کلیمنٹ آف روم، یہاں تک کہ ابتدائی مسیحی ایک سے زیادہ اناجیل سے واقف تھے، اور ہم یوحنا کی انجیل کے پارچہ جات سے بھی واقف ہیں جو مصر میں دریافت ہوئے تھے، جن کی تاریخ اس انجیل کی تالیف و ترویج کے حقیقی مقام سے بہت دور وسیع پیمانے پر تسلیم کیے جانے کے 500 سال بعد متعارف کرائی گئی۔ یعنی یہی حال خطوط کا بھی تھا۔ یہ قدیم خط و کتابت بہت دور ایشیائے کوچک میں اور روم میں تحریر ہوئی، اور ان کے پارچہ جات مصر کے صحرا سے کھود کر نکالے گئے، اور بالآخر مقدس لوکا اپنی تحقیق کے دوران انجیل کے شروع ہوتے ہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف چشمدید گواہوں اور کلام کے خادموں سے بات چیت نہیں کی، بلکہ خدام یسوع کی زندگی اور تعلیمات کے متعلق کئی تحریریں پڑھیں جو ان تحریروں میں مرقوم تھا۔ یہ بعید قیاس نہیں کہ انہوں نے مرقس اور متی کی دونوں اناجیل کے حوالہ جات لیے ہوں۔ ممکن ہے کہ مقدس لوکا ایک محتاط تاریخ دان نے ایک یا زیادہ دوسری ایک جیسی اناجیل کو تحریر سے پہلے پڑھا ہو، اسی سے ان مماثلاتی اناجیل کی گنجلک ہونے کی توضیح ہوتی ہے کہ ان سب نے خدام یسوع کی زندگی کا ایک جیسا مواد کیوں لکھا۔ نہ صرف متی اور لوکا کی اناجیل میں مرقس کی انجیل کا بہت سارا حصہ پایا جاتا ہے، بلکہ متی اور لوکا مرقس کی سی ترتیب بھی استعمال کرتے ہیں جب وہ مقدس مرقس کا متن استعمال کرتے ہیں۔ ان تینوں اناجیل میں اکثر اوقات یونانی لفظ بھی پراسرار طور پر ایک جیسے ہیں، یہاں تک کہ ان کے فعل بھی ایک جیسے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں ادبی تعلق بھی تھا۔ اس میں رسمی اور روایتی اعتبار سے رسمی زبان یا چشمدید واقعات پر بھی انحصار ملتا ہے۔ سوالات جو پہلے مماثلتی مصنفین نے لکھے اور جو ان مماثلتی مصنفین نے پڑھے، انہیں مماثلتی مسئلہ کہا جاتا ہے۔ ابتدائی مسیحی مماثلتی مسئلے سے بے خبر نہ تھے۔ شمالی افریقہ کے ایک چرچ فادر آگسٹین ہپو تقریباً 400 عیسوی میں لکھتے ہوئے یہ خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ مقدس مرقس نے مقدس متی کی خدام یسوع مسیح کی زندگی کی تلخی سی شخصیت کو تحریر کیا ہے۔ 21ویں صدی کے آغاز میں نئے عہد نامہ کے علماء کی اکثریت مقدس مرقس کی انجیل کو سب سے چھوٹی انجیل تصور کرتے ہیں، اور یہ پہلی انجیل ہے جو ضابطۂ تحریر میں لائی گئی۔ اس کے بعد متی کی انجیل اور پھر لوکا کی انجیل کی تحریریں لکھی گئیں، اور پھر مقدس لوکا کی انجیل لکھی گئی، مگر انہوں نے یہ اناجیل آزادانہ از خود لکھی تھی۔ ان کی 5ویں انجیل جسے متی اور لوکا ایک ساتھ شیئر کرتے ہیں مگر مرقس سے شیئر نہیں کرتے، جن میں وہ زیادہ تر مسیح کے اقوال ہیں، جن میں ایک یا دو معجزات ہیں۔ بہت سارے علماء یقین کرتے ہیں کہ یسوع کے اقوال کا ایک تحریری مجموعہ تھا جو کیو جرمن لفظ کوئل سے ماخذ ہے۔ یہ علماء کا حسن ظن یہ ہے کہ مقدس متی اور مقدس لوکا نے اپنی اناجیل لکھنے میں دونوں نے مرقس اور کیو دونوں پر تکیہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس مواد سے جو انہوں نے الگ الگ مختلف ذرائع سے اکٹھا کیا تھا۔ دوسرے نئے عہد نامہ کے علماء کہتے ہیں کہ کیو دستاویز کا کوئی وجود نہ تھا، اور یقینی طور پر ہمارے پاس اس کی کوئی نقل نہیں یا کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں جو اس کے متن کا کوئی ریکارڈ دکھائے۔ وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ مقدس متی نے مقدس مرقس کو استعمال کیا، اور مقدس لوکا جنہوں نے بعد میں لکھا انہوں نے مرقس اور متی کو استعمال کیا۔ یہ مواد اس نظریے کو ظاہر کرتا ہے کہ تینوں مماثلتی اناجیل ایک جیسا متن رکھتی ہیں اور کہانیاں جو متی اور لوکا آپس میں شیئر کرتے ہیں، لیکن مرقس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ کئی دوسرے علماء مختلف نظریہ رکھتے ہیں کہ متی اور مرقس نے انہیں خود لکھا اور انہوں نے زبانی روایات کو اپنا متن بتایا، لیکن مقدس لوکا تاریخ دان نے تحریری مواد کو استعمال کیا
और दोनों पर इन्हिसार किया। अलगर्ज इन नजरियात को साबित करना मुश्किल है, इसलिए कि अनाजील की हकीकी तालीफ की मालूमात बहुत कम और कमजोर है। ममासलत का मसला यही है। ये मसला शायद कभी हल ना होगा। आखिरकार हमें इन तीनों अनाजील मत्ती, मरकस और लूका को दीनवी एतबार से ताज़ीम देनी है, क्योंकि ये मतन के लिहाज से तो एक जैसी हैं, मगर इनके तौर तरीके हैरत अंगेज तौर पर मुख्तलिफ हैं। ये तीनों करीब करीब लिखी गई हैं, जो हैरान कुन असरारियत है। इनमें खुदाम यसू की जिंदगी, मौत और मुर्दों में से जिंदा होने के हालात हैं, जो उनकी ज़मीनी खिदमत के इख्तिताम के चंद साल बाद लिखे गए। एक बात याद रखने की है कि कदीम लिखारी 21वीं सदी के कॉलेज प्रोफेसरों की तरह ना थे, जो कुतुब खाना में बड़े आलमाना मज़ामीन लिख रहे थे, जिनके सामने किताबों के तोमार रखे हों और सालों के मामून मज़ामीन पढ़े हों। बहुत ज़्यादा ये लगता है कि ममासलती अनाजील के मुसन्निफीन यादों के लिए ऐसे भंवर में हों जिसमें खुदाम यीशु मसीह की ज़िंदगी, मौत के मुतालिक बुजुर्गों के चश्मदीद वाक़यात और सरज़मीन पाक के मुशाहिदात, ये तीनों रवायात के मुताबिक वहाँ रहे थे, और वो कहानियाँ थी जो इब्तदाई मसीहियों ने अपनी आइंदा नस्ल को पहुँचाई थी। यहाँ जो कुछ उनके पास तहरीरन था, जिनमें यीशु के जिंदा होने के मुतालिक बताया, जिनकी वो बहुत इज्जत करते थे, वो दस्तावेज और अनाजील को भी शामिल कर लेते। हो सकता है खुदाम यीशु के अक़वाल का मजमुआ या दूसरी तहरीरें जो अब मफकूद हैं, जिनमें पौलुस रसूल के खतूत और दूसरे इब्तदाई मसीही थे। अगरचे मतन के एतबार से मत्ती, मरकस और लूका की अनाजील एक जैसी हैं, लेकिन खुदाम यीशु मसीह की तस्वीर कशी में हर एक की स्टाइल और अहमियत बिल्कुल मुख्तलिफ है। आइए इन ममासलत और तजादात का जायजा लें। इसका आगाज मुक़द्दस मरकस की अंजील से शुरू करें। सबसे पहला मुक़द्दस मरकस का हवाला 130 ईस्वी में एशियाई कोचिक में हेराप्लुस के बिशप बुजुर्ग पाइसिस से मुश्तक है। पाइसिस की दस्तावेज तो मफकूद हैं, लेकिन 4वीं सदी के मसीही मौर्रिख यूबिस ने अपनी इब्तदाई मसीही तारीख में उसका हवाला दिया है। पाइसिस के मुताबिक मुक़द्दस मरकस रोम में पतरस रसूल के तर्जुमान थे और उनके वाज़ों को लिखते भी थे। सफ़ा नंबर 157। वो मुक़द्दस पतरस की रहनुमाई में अपनी अंजील लिखते थे। ये कोई गैर मामूली बात ना थी। पतरस को मछेरा होने की सूरत में एक तर्जमान की ज़रूरत थी, खासकर जब वो इब्तदाई रोमी मसीहियों को पैगाम सुनाते थे। वो गालिबन यूनानी बोलने वाले यहूदी थे। बहरा रोम की दुनिया में यूनानी एक बैनुल-अक़वामी ज़बान थी, जो बहुत सारे लोगों के लिए ये उनकी दूसरी ज़ुबान थी। मुक़द्दस मरकस के मुताबिक खुदाम यीशु मसीह के वाक़यात में पतरस रसूल के मुशाहिदात की झलक नज़र आती है। एक कहानी जिसमें खुदाम यीशु ने पतरस की सास को उनकी बीमारी से हाथ पकड़कर शिफा दी। ये कि पतरस की कश्ती में तकिया लगाकर खुदाम यीशु कैसे सो गए थे। कभी कभार मरकस लातीनी लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, स्पेक्यूलेटर यानी सजा देने वाले। इससे पता चलता है कि उन पर रोमी असर था और ये बात फितरी थी। इसके लिए वो रोम में रहते थे, यानी मरकस का अपना नाम ही मार्कस रोमी था, जो रोमी ज़बान में एक मशहूर नाम था। मरकस की यूनानी नसरातनी मंझी हुई ना थी और बाज़ औक़ात उसकी ग्रामर भी दुरुस्त ना होती। वो एक साहिली शख्स थे जिनकी लुगत भी महदूद थी, और वो कम पढ़े लिखे मछेरे के साथी थे जिसकी अपनी ज़बान यूनानी ना थी। यानी मुक़द्दस मरकस की अंजील में आरामी लफ्ज़ मिलते हैं जिसने दयानतदारी से तर्जमा किया। ताहम मरकस बर्तुलमाई फ़कीर की कहानी में ये बात ज़ाहिर करते हैं कि वो कैसे कहानी को दिलचस्प बनाकर बयान कर सकते हैं, कि वो अमल और मकालमात को कैसे यकजा कर सकते हैं। वो किरदारों के नाम बताने में खुशी महसूस करते हैं, जैसे बर्तुलमाई और यूसुफ करीनी के दो बेटे जिनका नाम रूफिस और सिकंदर था। उन्होंने अपनी अंजील में ना सिर्फ इख्तिसार से बल्कि अशकाली फ़न से भी मुज़य्यन किया है, जबकि दूसरी ममासलती अनाजील में ये नहीं मिलती। खुदाम यीशु अपनी खिदमत के आगाज़ में बयाबान में रोज़े के दौरान जंगली जानवरों के साथ रहे, या फिर 4 आदमियों ने कुफरनहूम में मफलूज की चारपाई को छत फाड़ कर नीचे उतारा।
मुक़द्दस मरकज़ की अंजील में तकरीबन 650 आयात हैं और ये ममासलती अनाजील में सबसे छोटी है। इसमें यस्सु की पैदाइश और बचपन की कहानियों का जिक्र नहीं। इसका कदीम तरीन मतन 4वीं सदी से महफूज है और इसका इख्तिताम यस्सु की कब्र पर औरतों के एक जवान से मिलने और यस्सु के मुर्दों में से जिंदा होने के मुतालिक जानने पर फौरन हो जाता है। यानी दूसरी अनाजील में कुछ और भी आयात हैं जहां यस्सु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं और अपने शागिर्दों को सारी दुनिया को अंजील की मनादी करने की हिदायत करते हैं। मुक़द्दस मरकज़ के लिए गलील में खुदाम यस्सु की खिदमत और यरूशलेम में उनकी मौत मरकज़े अहमियत थे। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, जो एक सादा से नबी थे, दरियाए यरदन में बपतिस्मे और यस्सु की खिदमत से पहले बयाबान में शैतान से आजमाइश की कहानी फौरी शुरू की और अचानक ख़त्म कर दी। मुक़द्दस मरकज़ खुसूसन खुदाम यस्सु के मौजज़ात में दिलचस्पी लेते थे। हालांकि उनका किरदार बताते हुए वो उन्हें उस्ताद कहकर मुखातिब करते हैं। मुक़द्दस मरकज़ ने यस्सु की चंद तालीमात तहरीर की हैं। उन्होंने अपनी अंजील का चौथाई हिस्सा यस्सु के बीमारों को शिफा देने, शैतान से सताए हुओं को बदरूहों से आज़ाद कराने और फितरत पर काबू पर मुख्तस किया है। सफ़ा नंबर 157A। एक और होशरुबा मौजज़े में वो यस्सु को पतरस की कश्ती में जगाते दिखाया है, जहां वो मौसम गर्मा की तूफानी आंधी को साकिन कर देते हैं। किसी भी और अंजील से ज्यादा इस इंजील का मौजू मौजज़े थे, जो तकरीबन 18 हैं। वो भी खुसूसी तौर पर आम लोगों से मुतल्लिक हैं, जैसे बरतुलमाई, पतरस रसूल की सास और 12 साल लड़की जिसे मरने के बाद जिलाया गया, कोढ़ी, बदरूह गिरफ्ता, बहरा, गूंगा, अंधा आदमी, बच्चे जिन्हें यस्सु ने बरकत दी, सरयानी फनीकी औरत जिसकी बेटी ने शफा पाई, सादा से लोग जिन्हें यस्सु की मदद की अशद जरूरत थी। जैसा कि बरतुलमाई की कहानी से जाहिर होता है, ये मिलने वाले इंसानी जज्बात से पुर थे, जिनमें खुद यस्सु उनसे मिलने वाले थे। लेकिन मुक़द्दस मरकज़ इरादतन यस्सु की नई और रूहानी बादशाही और अपनी अलूहियत के दावे को दिखाते हैं, और वो खुदाम यस्सु के आखिरी वक्त की ड्रामाई सूरत को दिखाने का इरादा करते हैं। मौजज़ाना कहानियां बताने का ये मकसद है कि मसीह की फौकुल फितरत कुव्वत का लोगों पर हैरान कुन असर नजर आए। उनकी इंजील इन अल्फाज से शुरू होती हैं, यस्सु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, और आखिर में सलीब पर खुदाम यस्सु की मौत, जहां सलीबियों की निगरानी करने वाला सूबेदार यूं कहता है, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। यहां तक कि यस्सु एक वाकयाती तमसील पेश करते हैं, एक ऐसी कहानी बताते हैं जो उनकी बालाई बादशाही की सच्चाई जाहिर करती है। उससे वो सामाइन को नसीहत करने के बजाय मुतासिर करते नजर आते हैं। मुक़द्दस मरकज़ के यस्सु जिंदगी से बालातर और अलूहियत से पुर हैं, और इसी वजह से रवायती तौर पर मुक़द्दस मरकज़ को मसीही आर्ट में शेर के साथ दिखाया गया है। यूबीस ने पाइसिस का हवाला दिया कि वो मत्ती रसूल की अंजील के इब्तदाई रवायती माखज़ हैं। पाइसिस ये बयान देते हैं कि मत्ती रसूल ने खुदाम यस्सु की तालीमात को अब्रानी जुबान में लिखा था। इस गैर मुबहिम बयान, जिनमें यस्सु की तालीमात की तहरीर और इसी तरह मत्ती की अंजील, पाइसिस के कहने के मुताबिक अब्रानी जुबान या आरामी जुबान, जो अर्ज़ मुक़द्दस में यहूदी बोलते थे, लिखी गई और बाद में उसका तर्जमा यूनानी में किया गया। से कई सदियों तक उलमा समझते रहे कि मत्ती रसूल अपनी अंजील या तो अब्रानी या आरामी ज़बान में लिखी, लेकिन बाद में उसका तर्जमा यूनानी में किया गया। रवायात से पता चलता है कि उन्होंने ये अंजील लिखने से पहले अर्ज़ मुक़द्दस छोड़कर अंताकिया में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। लेकिन जो इब्तदाई मत्ती की अंजील की तहरीर हम तक पहुंची है, वो यूनानी में है, और ये अब्रानी या आरामी लुगत का तर्जुमा नहीं लगता। इसकी वजह यह है कि मत्ती की अंजील की जुबान मरकज़ की अंजील के मुशाबे है, और मत्ती ना सिर्फ मरकज़ का ही मवाद इस्तेमाल करते हैं, जबकि 50% उनका अपना इजाफा है। मत्ती चूंकि मरकज़ से ज़्यादा तालीम याफ्ता थे, इसलिए वो यूनानी ज़ुबान उनसे बेहतर लिखते हैं, और उसकी ग्रामर भी दुरुस्त है। इससे पता चलता है कि या तो मत्ती रसूल ने मुक़द्दस मरकज़ का यूनानी मतन सामने रखा होगा, या फिर दोनों मुसन्निफ़ीन ने
सेमिटिक जुबान से नहीं बल्कि हकाइक जुबानी रवायात से अखज़ किए होंगे जो यूनानी जुबान में महफूज थे। इससे जदीद उलमा यकीन करने लगे कि मत्ती ने भी मरकस की तरह अपनी अंजील असल में यूनानी में ही लिखी होगी। सफ़ा नंबर 158। तमाम अनाजील में उनकी इंजील सबसे ज़्यादा हर दिल अजीज थी और ये मत्ती रसूल की ही यूनानी अंजील थी जिससे इब्तदाई चर्च फादर्स जैसा कि अंताकिया के इग्निशियस और पॉलीकार्पिक, जिन्होंने 156 ईस्वी में समरना पर शहादत पाई, हवाला दिए। उनके और बहुत से इब्तदाई माहिरीन इलाहियात के लिए मत्ती की इंजील इंतहाई मोतबर समझी जाती थी। नए अहदनामे में ये पहली मयारी किताब थी जो आज तक है। मत्ती की अंजील रवायती तौर पर उस महसूल लेने वाले से मंसूब की जाती है जिसे उन 12 में खुदाम यस्सु ने बुलाया था, क्योंकि इन ममासलती अनाजील में सिर्फ यही वाहिद अंजील है जिसने मत्ती महसूल लेने वाले का नाम बताया है। मरकस और लूका दोनों उसे लावी कहते हैं। रिवायती इंतसाब शायद दुरुस्त ना हो, मगर ये बात यकीन से कही जा सकती है कि मत्ती की इंजील इन चारों अनाजील में यहूदी मिजाज की हामिल है और उसका मुसन्निफ यहूदी दीन और तालीम में ताक दिखता है। ये नाम मत्ती ही मैथियस की दूसरी शक्ल है जो यहूदी हीरो यहूदा मकाबीन का बाप था। यीशु के ज़माना में ज़्यादातर यहूदी अपने बेटे के नाम मकाबीन जंगजुओं के नाम पर रखते थे। लगता है कि मत्ती ने एक ऐसे फरीसी की तरह तालीम पाई जो रब्बियों का पेशरो था, क्योंकि ये अंजील मरकस की तरह नहीं बल्कि इसमें यहूदी कलाम इलाही के हवाला जात हैं जिनका जाहिर है बराह रास्त अबरानी से तर्जमा किया गया था। वो यहूदी होने के नाते उसे यहूदियों के लिए लिखते हैं। अगरचे मत्ती मरकस की तर्ज कहानी की तकलीद करते हैं, लेकिन वो हमेशा मासवाए यस्सु के दुखों के मुकद्दस मरकस के बयानात की तखलीस करते हैं, जहां वो मरकस की तर्ज तहरीर के करीब तर हैं, मासवाए मामूली फ़र्क के। इसका मतलब ये है कि मत्ती मरकस की वाज़ेह तफसील को कम कर देते हैं और उनकी इंजील में ड्रामाई अंदाज की कमी है। अलावा अज़ीं मत्ती खुदाम यीशु मसीह की कहानियों में तालीमात को यकजा कर देते हैं, जैसे पहाड़ी वाज है। उन्होंने दरअसल खुदाम यीशु की कई छोटी छोटी हिदायत को हकीकतन तवालत से इकट्ठा कर दिया। उन्होंने खुदाम यीशु मसीह की 3, 5 और 7 तमासील और बयानात और मौजज़ात को इकट्ठा कर दिया। मत्ती तरतीबकार हैं, इसलिए कि मत्ती ड्रामा में दिलचस्पी नहीं रखते थे जितना के तालीमात में थे। वो यकीनन रबियों की तरह काम करते थे और तालीमात के लिए रबियों का अपना हदफ होता है। मत्ती ये दिखाना चाहते थे कि यीशु यहूदी मसीहा थे जो दाऊद की नस्ल से थे और जिनका बड़ी मुद्दत से इंतजार हो रहा था। उनका मिशन जमीन पर खुदा की बादशाही को कायम करना था, जिसे मत्ती मसीही कलीसिया समझते थे। यानी मत्ती ही वो ममासलती अनाजील में वाहिद मुसन्निफ हैं जिन्होंने कलीसिया का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और इसी वजह से मत्ती ने यहूदी कलाम मुकद्दस का बेशतर हवाला दिया है। खासकर कलाम की पेशन गोइयों का मसीह इन पेशन गोइयों की तकमील है। दवाए रबानी में तेरी बादशाही आए मत्ती की अंजील में ही मिलती है। मरकस की अंजील में ये इख्तिसारन है। इसी तरह मुबारकबादियों में वो मुबारकबादियां जिनमें बादशाही की मीरास पाएंगे 17 तमासील में उनके लिए 10 अनोखी हैं। उनका मरकज भी खुदा की बादशाही है।